let me know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all, and walaikum assalam to those people who have written assalamu alaikum. Before starting the lecture, I want to know how was your paper and what is your reaction on recording rights. अच्छा पीएनए शिफा को रिकॉर्डिंग राइट नहीं मिले जी, एक मिनट है। ओके, और किसी को नहीं मिले तो भी बता दे। डॉक्टर हिना कह रही सर कोई ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, वो आप खुद देख लें फिर। बाकियों को तो आ रहा है ना, ऑडियो सबको मिल रही है ना। डॉक्टर सादिक ने पेपर दिया है, मैंने कल उस दिन नाम पढ़ा था इनका। जी सर, कहते रहे थे बहुत। हाँ गुड, 5 लोग हैं सर। सर ने तो सर दिया मैंने। वेरी गुड सर, आपने तो फिजिशियंस ने तो दवाई भी चाहिए होगी पेपर बी में खास तौर पे। नहीं बस बी ठीक था सर, ए में कुछ साथ में मसला, बाकी बी ठीक हुआ। 2 पेपर 15 बहुत है जी, 15 में पास हो जाएंगे आप। सर सादिक का तारुफ ये है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमाए सर। अल्लाह आमीन जी, आमीन, अल्लाह आपको कामयाब करे। He is Thank you, sir. And he has also done FCPS in chemical technology. He is doing it and is already sir आप तो एसोसिएट हो गए होंगे आप, है ना, मेडिसिन में? मैं सर एसोसिएट हूँ, 4 साल से एसोसिएट हूँ। अच्छा, वैकेंसी का प्रॉब्लम होगा ना। तो एमसीपीएस भी सर ने किया था, मुझे याद है, वहाँ कराची आए थे आप। जी बिल्कुल। एमसीपीएस करना है सर मैं। हाँ मेरे पास है। तो बेस्ट ऑफ लक जी, एमसीपीएस पास होंगे आप जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वी विल स्टार्ट। ये डॉक्टर सादिक और सबके लिए इंटरेस्टिंग हो, बिकॉज आज पैथोफिजियोलॉजी विच इज ग्रेट ओवरलैप विद मेडिसिन, कुछ थोड़ा सा हमारा होते हैं स्पेशलाइज चीज़ें, बाकी तो मेडिसिन के साथ ओवरलैप है इसका। तो दिस इज Z20, द P कोड इज फॉर पैथोफिजियोलॉजी, NT कोड इज फॉर टेक्निक्स। जस्ट टू जब आप ये बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर आपको आसानी हो डिफरेंशिएट करने के लिए, इसलिए हमने ये कोडिंग सिस्टम लगाया है। तो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी, दैट मींस द सम फिजियोलॉजी ऑफ इट एंड द डिसऑर्डर्स। ठीक है, कुछ फिजियोलॉजी और या बायोकेमिस्ट्री जब तक हम में नहीं आएगी, वी कांट अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी एंड वी कांट अंडरस्टैंड द chemical pathology of these disorders. So as usual, we will start with the learning outcome. At the end of this lecture, the students will be able to describe some disorders of male reproductive endocrinology, not all of them. Okay, mostly this is based, the lecture is based on the lesson which was in probably DLP1, DLP1. So something new has been added, like a warning to those who expect new things. There are very little new things in it. Okay, and I know some people are now hafiz of the DLPs, so it will be very easy for them to answer today's questions. But there are new questions also. D. 10 years. I'll like to ask more from our new students. We have got MPhil students. Oh, I'm sorry, ये तो नजर आ गया था। अच्छा, तो ये why it is Sertoli cell? जी इधर से बताइए मशीना, कुछ have you got some idea why what are Sertoli cells and what it has to do with the FSH? अच्छा, किसी को कोई आइडिया हो? निदा नहीं, लीडिंग सेल होता है। तो what are the hormones which are secreted by leading cell? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, शाबाश शाबाश, ठीक है। So we will now see that male reproductive hormones are basically, there are 2 axes which deal with the male reproductive hormones. One is FSH inhibin axis, which is a marker of Sertoli cells. ठीक है, if somebody asks you what are the marker of Sertoli, because as you told, there are 2 types of cells. One is the Sertoli cells. Somebody call it Sertoli cells. I don't know exact
pronunciation. जो भी हो, please excuse me for that. Sertoli cells or Sertoli cells, and their marker is inhibin FSH inhibin axis. They are controlled by FSH inhibin axis, whereas leading cells is controlled by G LH LH testosterone axis. Okay, that is a separate axis. So there are, from the very beginning, you should know it, that there are two axes which control. Now when I say X, no, two axes, AXES. जब सिंगुलर होता है तो AXIS होता है, जब इसको प्लूरल यूज करेंगे तो AXES. So there are two axes. One is FSH inhibin and the other is leading cell testosterone, LH testosterone axis. ठीक है, ये बहुत important बात है. So अगर कोई आप ऐसा डिसऑर्डर कर रहे हैं विकास, ये अभी तक नहीं आया STU, अच्छा कॉमन लेक्चर, इसको मैसेज दें. हाँ, वो बेचारे आज कॉमन लेक्चर. So for example, one of our students of FCPS has been given the topic of which is concerned with male at DSD. So he will be dealing with the LH testosterone axis, not certainly, and absolutely not. ठीक है, ये बहुत जरूरी है बताओ. अच्छा, एक और यहीं पे बात बता दूं, बहुत बेसिक सी चीज है कि some people have named LH as interstitial cell stimulating hormone in males. ठीक है, because FSH and LH are basically they are female hormones. These names have been borrowed from females because there are no follicles in males. Why do you call it follicle stimulating hormone in males? It's a misnomer. There are ये किसी का माइक ऑन है जी, बंद करें. आप खुद कर देना. ये सब बहुत तारीफ हो गया. अच्छा. So these are borrowed from female systems. There is no luteinization in males. Absolutely no luteinization. So it is called luteinizing hormone in males also. So there is an attempt to give a proper name, and it is called interstitial. Why interstitial cell? Because this leading cells, they are located in the interstitium of the testes. So the same thing is written here. Hypothalamus releases GnRH or LRH, which stimulates LH or ICSH, ICSH, and FSH to stimulate transformation. And we will discuss this axis a little bit further. So this is the LH control. That means LHRH or GnRH, it secretes luteinizing hormone which acts on leading cells to produce testosterone, and testosterone acts on the seminiferous tubules of the testes, and then it also negatively inhibits the LHRH. So there is a negative feedback system. Today we are concerned with the left side of this diagram, not the right side. Female, which we'll discuss separately. Similarly, now you can appreciate the two parallel axes. One is LH within the previous slide, and now the FSH. Same LHRH or GnRH acts on the FSH to produce inhibin, and inhibin then by negative feedback inhibits FSH. ठीक है, और तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है कि LH acts directly on the LHRH hypothalamus, but inhibin acts on the pituitary gonadotropes, and that inhibits FSH. ठीक है. Now puberty and testosterone, because we deal a lot of cases of precocious puberty, we deal with the cases of delayed puberty.
In all these cases, we should know the what is exactly puberty and when it occurs. Puberty at age at which individual become capable of sexual reproduction. Before puberty, small amounts of testosterone inhibit GnRH release. During puberty, testosterone does not completely suppress GnRH release, resulting in increased FSH, LH, and testosterone. होता ये है कि जो inhibition है, there is an inhibition of this GnRH by small amount of the testosterone produced by the child's testes, and that inhibition is gone in puberty, and there is now more secretion of GnRH. Okay, what is the age of normal age of puberty in males? It varies with the population. From कितने साल 9 years normal नहीं है. 9 years से नीचे अगर puberty हो तो then we call it precocious puberty. तो normal तो काफी double है. ये यानी ये ना हो कि 10 साल के बच्चे में आप कहेंगे delayed puberty है. ठीक है, 14 years तक ये period है. तो above 14-15 years then it will be delayed puberty. तो 9 years से कम पे आप इसको precocious puberty कहते हैं, early puberty. ठीक है. There is another source of testosterone other than testes. It is James' test of testes, and it is very important. Don't forget this source, and this is adrenal cortex. You know, there is testosterone in females also, and it is mainly from adrenals. Okay? It causes development of male sex organs in embryo. We will discuss a little bit later. Okay. All of the following factors lead to a decrease in testosterone in men except the ये नए स्टूडेंट जरा आंसर करें, तो और से पढ़ें इसको और आंसर करें. जी LH. हाँ जी, इधर से तो वहाँ उधर सीएमए से भी डॉक्टर सीमी आई हुई है. वो कौन है? आगे आगे. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ बताइए. उधर से तो LH आ रहा है ज्यादातर जवाब जो है ना. ओके, ये बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, व्हाट बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन डज टू द टेस्टोस्टेरोन टू LH? क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है. कॉर्टिकोट्रोपिक CRF डिक्रीज करेगा, एक्सोजेनस लेप्टिन्स डिक्रीज करेंगे, फास्टिंग से डिक्रीज होता है. ठीक है. सो ऑल अदर फैक्टर्स दे डिक्रीज LH. और ये आप थोड़ा सा इस पे अगर पॉन्डर करें, अगर आपको नहीं पता तो इन सारी सिचुएशन में जाहिर है LH डिक्रीज होता है बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दोज सिचुएशंस. एक पेशेंट को अगर बैक्टीरियल वो हुआ है सेप्टिसीमिया, so it is quite natural to inhibit LH and testosterone. Similarly, CRF, there is also a stress hormone. Okay? So LH is the only thing which leads to the LH is the only thing which increases testosterone. In normal male with XY karyotype, development of normal internal genitalia, epididymis, vast deferens, and ये जरा सोच के बताइएगा, ये बड़ा important point है. It takes place under the influence of which of the following hormones? ये बेसिक क्वेश्चन है. जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम बेसिक साइंसेस थोड़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि हमें कुछ रिवाइज हो और कुछ चेंजेस भी आई हैं, ख़ासतौर पे जो हमने पहले ज़माने में पिछली सदी के पढ़े हुए जो लोग हैं उसके बाद तो बहुत चेंजेस आ गई हैं. ठीक है. तो अभी इसलिए इसको रिवाइज करना ज़रूरी है. तो इधर से आंसर तो ज़्यादातर ई आ रहा है. तो आप लोग क्या कह रहे हो? जी जी इधर से दोनों टेस्टोस्टेरोन ही होगा. हाँ, मेजॉरिटी गलती कहती. क्यों जी निदा जुब्बा?
टेस्टोस्टेरोन, यस इट इज टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन इज नॉट, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, ये ना समझिएगा कि टेस्टोस्टेरोन इज ए हार्मोन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में, मेल प्यूबर्टी में टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ता है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपसे ऑनलाइनर किया जाए कि बिफोर प्यूबर्टी or the puberty is the only period in a male's life cycle when testosterone is high, is it true or false? अगर मैं पूछूं कि puberty is the only period in a male's life cycle when testosterone is high, is it true or false? False. ठीक है, puberty पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है, no doubt about that, but it is not the only stage. There are surges of testosterone in male life, including fetal life. Fetal life में भी testosterone की एक surge आती है, जिससे सारे male organs develop होते हैं, जिसकी लिस्ट ये दी हुई है इस क्वेश्चन में, epididymous, vas वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इसके अलावा इसका ये डॉक्टर नुसरत आपका माइक ऑन है, जरा इसका माइक बंद कर दें प्लीज। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि देयर आर सर्जेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन वेरियस लाइफ स्टेजेस ऑफ मेल, इंक्लूडिंग इंट्राफिटल लाइफ। ड्यूरिंग इंट्राफिटल लाइफ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ, देयर इज development of these internal genitalia. Immediately after birth there is a surge also, and the descent of testes also influenced by testosterone. जी कुछ कह रहे थे? तो ये नहीं है कि सिर्फ मेल में होता है, ठीक है। इसको हम एक स्लाइड और बड़ी खूबसूरत है इस पे, I will share with you. Now can you name 3 tiers of organization of male reproductive system? 3 tiers कौन से हैं? बड़ा सिंपल सवाल है जी। इधर से tiers का मतलब है स्टेजेस, tiers होते हैं, जैसे tiers ऑफ कमांड होते हैं। ये आपका एक सीओ होता है, फिर उससे सीनियर फॉर्मेशन कमांड वगैरह होता है। यस, आप देखें आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, फिर डिविजनल हेल्थ ऑफिसर, फिर प्रोविजनल डायरेक्टर हेल्थ, ये tiers कहलाते हैं। प्रोनाउंसिएशन मुझे tiers ही होते हैं, मेरे ख्याल है हम tiers ही करते हैं। No, that is the stage. नहीं। देखिए ये सवाल आपको आज वाइवे में पूछ सकते हैं, आ सकते हैं। अब आपको आता है इसका जवाब, मैंने इसीलिए लिखा है कि everyone of you knows the answer of this question, लेकिन आपको सिमुलेट करना है कि what examiner is saying about tiers। कौन सी tiers हैं? 3? नहीं बेटा, नहीं। कंट्रोल के टेस्ट कौन से हैं? 3? हाँ, नहीं, नो। गोनेड्स, फिर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। ये देखो ना, मैंने एग्जांपल दिए टेयर्स ऑफ कमांड, बल्कि आप ऊपर से शुरू करें, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड टेस्टिस। ये मैं इसलिए लिखा है सिर्फ आपको कि अगर आपसे कोई ये वर्ड, मुझे एग्जामिनर के पास उस वक्त टाइम नहीं हुआ कि आपको बैठ के टेयर्स बताए, डेफिनेशन बताए, आपको समझ आनी चाहिए क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो ये टेयर्स का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेजेस हैं, ठीक है। हाँ, वो भी आएगा। हाइपोथैलेमस विद द फर्स्ट टेयर, टॉप मोस्ट टेयर, GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसको लोग LHRH भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन FSH, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मेल में ICSH, ठीक है। LH stimulate testosterone production by Leydig cell, ये तो हम कर चुके हैं पहले भी, in interstitium, and FSH supports spermatogenesis by stimulating Sertoli cells in the seminiferous tubules, ठीक है। So LH का फंक्शन जो है Leydig cell में है, मेनली उनकी डेवलपमेंट है, और FSH का फंक्शन spermatogenesis है, ठीक है। So spermatogenesis and by stimulating Sertoli cells. Okay, जी. Another question. Can you name a marker of testicular function other than testosterone? ये भी आता है सबको। क्या लिखा जी? DHT। और
बेटा DHT तो टेस्टोस्टेरोन का ही कन्वर्जन है ना, वो तो एक्टिव फॉर्म है उसकी, इनहिबिन बी और AMH और DHT तो वही है ना, टेस्टोस्टेरोन ही है ना, AMH और जी आप बोले इधर से, नहीं ध्यान में आया, अभी तो हमने पढ़ा है वो, अभी तो पढ़ा था इनहिबिन हाँ। लेकिन आप ये बताना है कि इनहिबिन A या B? जी B, inhibin B, बिल्कुल inhibin B. So remember this thing. Sometimes you have to do inhibin B for the assessment of male infertility, or this is a marker of testicular function. This is another marker of testicular function. अब यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी केमिकल पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं. Inhibin B is not a new thing. It is probably 2 decades ago the kits were available for this. लेकिन ये कोई इतना डेवलप नहीं हुआ. ये जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना टेस्टों की, इट इज डिराइव्ड बाय मार्केट फैक्टर्स, नो डाउट अबाउट दैट. मार्केटिंग इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट. पर्सनली आई थिंक इनहिबिन बी इज अ वेरी गुड मार्कर, लेकिन चूंकि इतना यूज नहीं होता तो कंपनियों ने इसको नहीं इतना ज्यादा प्रमोट किया. I don't know any chemiluminescence kit available for inhibin B. It is still on ELISA. On ELISA, it is available, and it was available about 15 years ago when we did a dissertation on that. जब याद नहीं है, probably आसिफ the name आसिफ का था और हमारा पेपर पब्लिश हुआ है उसमें JCPS में. It was evaluation of inhibin B for the testicular function, because इसका सबसे बड़ा फायदा ये है जिस वजह से हमने ये स्टडी की थी कि एक टेस्ट होता है जो हम करते हैं फंक्शनल टेस्ट व्हिच इज नोन एज HCG स्टिमुलेशन टेस्ट. ठीक है, HCG स्टिमुलेशन टेस्ट वी डिस्कस व्हेन वी वर डिस्कसिंग DSD XY DSD कि हम उसको कंफर्म करते हैं. HCG स्टिमुलेशन टेस्ट में क्या करते हैं, हम HCG इंजेक्शन देते हैं which is an analog to GnRH. वो GnRH चलना होगा ना, हाँ LHNR मैं देख रहा था क्या LHNR हो गया. ठीक है, तो LH देने की बजाय आप GnRH देते हैं. ठीक है, तो वो that leads to the stimulation of testosterone. So if we suspect male DSD or XY DSD, for example AIS in a patient, the testosterone secretion on giving LH or HCG is normal क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बल्कि खासी ज़्यादा भी होती है. तो that demonstration of normal production of testosterone on LH or HCG injection, समझ आ गई ना बात. उसका मतलब ये क्या होता है कि इसका टेस्टोस्टेरोन फंक्शन नॉर्मल है, लेकिन देयर इज अ रिसेप्टर डिफेक्ट, आइदर रिसेप्टर डिफेक्ट और सेकंड क्या कॉज हो सकती है 5 अल्फा रिडक्टेज डिफेक्ट which leads to conversion of LH to testosterone to dihydrotestosterone, the active form of testosterone. ठीक है, ये मैंने आपको रिवाइज किया है HCG स्टिमुलेशन टेस्ट which is used for AIS. लेकिन HCG स्टिमुलेशन टेस्ट का एक और यूज भी है, वो क्या है, बहुत अच्छा यूज है, जरा सा कम होता है वो. फंक्शनल टेस्टिस वेरी गुड. हाइपोगोनाडिज्म में आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है रेफर होके, उस पेरेंट्स कंप्लेन दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ हिज जेनिटेलिया इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एज. The size of testis is small, the size of the penile shaft is small, and now the child of course is the prepubertal age. In prepubertal age, if you do testosterone, what is the problem in that? आप टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन करके उसको कर सकते हैं असेस? नहीं कर सकते. इसकी क्या वजह है जी? हाँ जी बताएं, जूनियर को बताएं जी. नहीं रेज नहीं होता ना, नॉर्मली भी सप्रेस होता है. ये बात याद रखिए कि बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर द इन्फेंट लाइफ, द टेस्टोस्टेरोन इज मार्कली सप्रेस, बहुत ज्यादा सप्रेस होता है.
तो जो चीज पहले ही सप्रेस है उसको लो से डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। आपके टेस्ट इतने अच्छे नहीं है कि आप उसको लो टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन से डिफरेंशिएट कर सकें। लेकिन अगर आप उसको स्टिमुलेशन दें HCG की, LH की, तो जो नॉर्मल टेस्टिस होगा दैट विल प्रोड्यूस नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये एक और यूज है HCG स्टिमुलेशन टेस्ट का, जो आज के हमारे लेक्चर में इम्पोर्टेंट है। पिछले लेक्चर में भी था और आज के लेक्चर में ये इम्पोर्टेंट है, उसका यूज है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोगोनाडोट्रोपिक, सॉरी, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म की डायग्नोसिस में आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, और आपको स्टिमुलेशन करनी पड़ती है, सब कुछ। अब ये प्रॉब्लम है कि आप बच्चे को देते हैं, लाइक देते हैं, तो जाहिर है ये एक इन्वेसिव टेस्ट है, इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत स्पेशलाइज। पूरे पाकिस्तान में प्रॉबेबली 2 जगहों पे सिर्फ अवेलेबल है, तो हमारे यहाँ पास है या क्यू में है। तो लेकिन अब इसका हल लोगों ने ये कहा कि अगर आप उनके टेस्टिकल फंक्शन नहीं देखते हैं ना आपने, अगर LH नहीं है तो इनहिबिन कर लें। इनहिबिन बी की खूबी है कि वो यू कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम लो टू नॉर्मल। नॉर्मल और लो में मतलब लोगों का क्लेम है कि यू कैन डिफरेंशिएट simply doing the stat inhibin B without stimulation। और ये हमारा पेपर था, ये हमारी रिसर्च थी। उस मेजर आसिफ ने जो किया था वो इनहिबिन एलाइजा पे किया और उसको कंपेयर किया HCG स्टिमुलेशन टेस्ट से, और उसने देखा कि यू कैन वेरी इजीली डिफरेंशिएट इट। तो देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि उसके बावजूद ये कोई पॉपुलर नहीं है टेस्ट। आपने मेरे ख्याल पहली दफा ही सुना होगा बहुत सारों ने, इसलिए कि ये मार्केटिंग है, इसको नहीं डेवलप किया लोगों ने, कम्युनिकेशंस पे नहीं आया। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द लेबोरेटरी पार्ट ऑफ इट। देयर इज अनदर हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एक्टिविन। एक्टिविन अगेन कुछ ज़्यादा नहीं, इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है और इस पर अभी ज़्यादा काम भी नहीं हुआ, और मुझे भी कोई इतना ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो बट इट इज़ ओपन टू रिसर्च। इट इज़ सेड दैट इट स्टिमुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द FSH बीटा सब यूनिट को स्टिमुलेट करता है। आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ इट। ये सर्टेली सेल का हार्मोन है, एंड इट whereas inhibin that inhibits FSH, this activin stimulates FSH। ठीक है, और इसी से इनके नाम है, inhibin inhibits and activin activates। ठीक है, इससे तो बहुत आसान हो जाएगा याद रखना। ठीक है, तो अब probably interplay of this inhibin and activin that leads to the proper production of FSH and all the regulation। ठीक है, but as I told you, I don't know much about activin। Can you name 3 types of rhythmicity of GnRH? Rhythmicity क्या है GnRH की? अब ये आज मैंने थोड़ी सी टर्म्स यूज किए हैं क्योंकि वाईवे वगैरह में कहीं आपको इवन पार्ट ऑफ एन SAQ, आपके एमफिल के भी SAQs आने हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का एक कंपोनेंट हो सकता है कि कैन यू नेम द 3 टाइप्स ऑफ रिथमिसिटी, और ये भी आता है आपको, आई एम श्योर सबको आता है जी। चलिए मैं सीनियर से पूछता हूँ। रिथमिक पल्सेटाइल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आमना सलमान, वेरी गुड। और एक तो ये होगी इसकी रिथमिसिटी, और सर्कैडियन रिदम, वेरी गुड। और थर्ड जरा और लॉन्ग में जाओ, सीजनल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि कई दफ़ा पेशेंट के रिजल्ट वेरी कर जाते हैं। पेशेंट आके कहते हैं जी पहले आपने ये दिया फिर ये दिया, तो यू मस्ट नो दी ऑल दोज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू योर टेस्ट। हम क्यों बेसिक साइंसेस में जाते हैं? इसलिए कि हमारे टेस्टों पे इफेक्ट कर रहा है। उस बेसिक साइंस से हमने वो टेस्ट डेवलप किए हैं हमने, तो उससे उस पर इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले सीजनल है, पीक्स इन स्प्रिंग। अब ये पता नहीं मुझे कि स्प्रिंग में ज़्यादा होता है नहीं होता, क्यों होता है, लेकिन सीजनल वेरिएशन लोगों ने रिपोर्ट की है। ठीक है, देयर इज सीजनल वेरिएशन। सर्कैडियन विच मीन्स डे, टाइम ऑफ द डे। Whenever the term circadian is there, it means time of the day। चलो मुझे थोड़ा सा यहाँ
मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों से पूछता हूँ, FCPS और MPhil. Can you name a hormone which has got the strongest circadian rhythm? Cortisol. Very good. ये बच्चे माशाल्लाह. Very good, very good. हालांकि आपके सेकंड सेमेस्टर में एंडोक्रिनोलॉजी है, लेकिन आपको अभी से आती है माशाल्लाह. कॉर्टिसोल जी, खुशबक, थैंक यू वेरी मच. ओके, सो इसकी, लेकिन इसकी भी, टेस्टोस्टेरोन की भी सर्कैडियन रिदम है, बट इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. ये इतनी क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप पेशेंट को कहें कि सुबह सुबह कराए. लेकिन बेहतर है कि अगर सुबह करा लें, तो अगर आपके पास चॉइस है कि पेशेंट को बुलाना है आपने अगले दिन, तो बेहतर है कि सुबह बुला लें ताकि आपको सही पता चल जाए. ठीक है. अच्छा, उसके बाद पल्सटाइल इन मिनट्स. ये वो पल्सटाइल जो डॉक्टर साहब ने लिखा था. पल्सटाइल का मतलब है जो यानी कॉन्टिन्यूस सिक्रीशन नहीं होती. अक्सर हार्मोन्स में ये होता है कि उनका एक पल्स आती है, फिर डाउन हो जाती है, फिर पल्स आती है, फिर डाउन हो जाती है. ठीक है. कैन यू नेम ए हार्मोन व्हिच हैज गॉट अ वेरी स्ट्रांग पल्सटाइल सिक्रीशन? ग्रोथ हार्मोन. आप लोग तो माशाल्लाह वेरी ग्रोथ हार्मोन. क्रेडिट गोज टू राजा नवीर. ठीक है, इन्होंने पढ़ाया हुआ है जी, इन्होंने भी ग्रोथ हार्मोन लिखा है. वेरी गुड. सो ये GnRH की जो है, जाहिर है जब ये GnRH में होगा तो ये फिर उसमें भी होगा, LH में भी होगा, टेस्टोस्टेरोन में भी होगा, सब चीज़ों में होगा. ठीक है. ओके, एक छोटा सा वर्ड अबाउट मेलाटोनिन. मेलाटोनिन जो है ना, वो इट हैज बीन इम्प्लीकेटेड, दिस हार्मोन is implicated in seasonal and circadian rhythm. ये बस इतना काफ़ी है. अगर इसे, लेकिन किसी ने इस पर रिसर्च करनी है मेलाटोनिन पे, you can do it. ठीक है. बड़ी आसान रिसर्च होगी. आप 100 लें मेल, हेल्दी मेल लें, उनका मेलाटोनिन सुबह कर लें, शाम कर लें, प्रोवाइडेड आपके पास किट हो मेलाटोनिन की अवेलेबल हो, और आई एम श्योर ये मिल जाएगी आपको. ठीक है. अच्छा, एक हमने सिंड्रोम पढ़ा था, चले पहले मुझे बताइए, कैलमैन सिंड्रोम. याद होगा आपको, किसी DLP में डिस्कस किया था कैलमैन सिंड्रोम. ये फर्स्ट ईयर वालों को तो नहीं ज़ाहिर पता होगा. इधर से शुरू करते हैं, शाम से. कुरतुलैन और बाकी लोग, कोई इनोस्मिया विद हाइपोगोनाडिज्म. वेरी गुड. कैलमैन सिंड्रोम मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, याद रखिए. DLP में द पेशेंट वाज फीमेल, तो ये ना समझिएगा कि सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में भी होता है. ठीक है. ये बड़ा आसान है कि यूजुअली ये बॉय और गर्ल, क्या लिखा है, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपो. वेरी गुड. इट इज हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म. हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म का क्या मतलब होता है? हाँ, अभी हम डिस्कस भी करेंगे. जब LH FSH यानी पिट्यूटरी हार्मोन भी लो हो और टेस्टोस्टेरोन भी लो, तो हम इसको कहते हैं हाइपोगोनाडोट्रोपिक, यानी गोनाडोट्रोप्स है वो भी कम है, हाइपोगोनाडिज्म यानी गोनाडल हार्मोन भी कम है, दोनों कम है. तो अब ये जो होते हैं कैलमैन में, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म होता है. फीमेल्स जो होती हैं वो जब उनकी प्यूबर्टी वाली एज आती है तो दे प्रेजेंट एज प्राइमरी एमेनोरिया. उनमें प्राइमरी एमेनोरिया होता है, और साथ वो में भी वो रिपोर्ट करें अगर इंटेलिजेंट हैं पेरेंट्स भी और वो खुद, कि मुझे उसको एनोस्मिया होता है. एनोस्मिया क्या होता है? स्मेल नहीं आती उसको. ठीक है. तो कोई किसी किस्म की खुशबू नहीं आती उसको. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड कैलमैन सिंड्रोम. अच्छा, चलिए साथ ही मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ. अगर हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म के साथ बिसिटी हो मेल या फीमेल में, फिर कौन सा हार्मोन आपके जहन में आता है, सिंड्रोम आपके जहन में? प्रेडरविलाई सिंड्रोम. ठीक है. किसमें, गर्ल्स में या बॉयज में? गर्ल्स में. वो गर्ल्स में होता है सिर्फ. ठीक है. अच्छा, अब ये बताइए, हाँ क्या लिखा है जी? प्रेडरविली. वेरी गुड. PW. अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, कैलमैन की तरफ वापस आते हैं. What anosmia has to do with the GnRH? हाइपोगोनाडिज्म के साथ ये एनोस्मिया का क्या ताल्लुक है? ये कभी गौर किया जी? हाँ बोले आप. हाँ, ये आमना सलमान ने लिखा है. क्या लिखा है? इमोटाइल सीलिया. नहीं बेटा, वो तो लोकल हो गया ना. ऑल्फैक्टरी डिस्प्लेजिया नहीं, वो भी नहीं है. सिंबल न्यूरॉन माइग्रेशन. वेरी गुड.
ये कहा ये जाता है कि जो hypothalamic cells हैं which become part of the pituitary later on, these cells they migrate from the olfactory area of the cerebellum. जो एरिया ऑल्फेक्शन को कंट्रोल करता है, स्मेल को कंट्रोल करता है, वहां से हाइपोथैलेमस आता है। तो अगर वहां पे कोई डिफेक्ट हो तो जाहिर है फिर वो हाइपोगोनाडिज्म भी होगा और एनोस्मिया भी होगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं भूलेगा कॉलमैन सिंड्रोम, ठीक है। सो कंजेनिटल हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, फेलियर ऑफ नॉर्मल माइग्रेशन ऑफ GnRH न्यूरॉन्स, hypothalamus unable to secrete GnRH, anosmia, other midlines plus hypogonadism, Kallmann syndrome. ओके जी, अब थोड़ा सा हम जेनेटिक्स की तरफ जाते हैं। और ये भी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आपको मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा क्या सिग्निफिकेंस है, what is the context of this part of the lecture. Can you name the region on Y chromosome which initiate testicular development? साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, can you name the function and source of AMH? दो क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी, ये तो बड़ा बेसिक साइंसेस का है। सबसे जूनियर लोगों ने लिख भी दिया जी, माशाल्लाह, बावलपुर, शिफा, वेरी गुड। SRY जीन, ठीक है। SRY जीन is located on Y chromosome and that is a very important, मैडम जया भी बैठी हैं जो हमारी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की एक्सपर्ट हैं, that is a very important region in Y chromosome which is involved in the initiation of testicular development, ठीक है, testicular transformation जिसको कहते हैं, तो testicular formation। तो ये जो SRY रीजन है ये इम्पोर्टेंट है। चलिए साथ ही दूसरे सवाल का जवाब भी दे दें कि AMH तो अभी आपने जिक्र किया, एंटी मलेरियन हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है और इसका सोर्स क्या है? सोर्स तो डॉक्टर खुशवंत अरबाब ने बिल्कुल ठीक लिखा, सर्टनली सेल्स है। तो इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी मलेरियन हार्मोन? यानी मलेरियन डक से कौन से हार्मोन, कौन से, ये बताइए, मलेरियन डक से कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, मेल या फीमेल? फीमेल ऑर्गन बनते हैं ना, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना वगैरह, ओवरीज, ये बनते हैं इससे, AMH से, सॉरी मलेरियन डक से, ठीक है। तो और वुल्फियन डक से बनते हैं मेल, ठीक है। तो AMH का क्या काम हुआ फिर मेल में? सर्टोली सेल इनहिबिट्स द फंक्शन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी गुड। तो AMH का काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इनहिबिट करना, ठीक है। तो दोनों चीजें साथ साथ चाहिए आपको। एक मैं शायद पहले भी आपको कोट किया है, मुझे वो हमेशा याद आते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे जनरल सिकंदर अली राना होते थे हार मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, ठीक है, बहुत ही तारीख साज शख्सियत थे, लेकिन आप लोग तो बहुत जूनियर हैं जो AMC के स्टूडेंट्स हैं। ही डिड हिज PhD फ्रॉम जर्मनी इन एनाटॉमी। तो वो मैंने जब उनका बेसिक साइंसेस का कोर्स किया तो वो उन्होंने एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाते हुए उन्होंने एक खूबसूरत फिक्रा बोला जो मुझे आज तक याद है कि नॉर्मल डेवलपमेंट इज ऑफ फीमेल। नॉर्मली अगर हो तो वो फीमेल डेवलपमेंट होती है, स्टार्ट हर मेल और फीमेल दोनों जो है ना वो फीमेल डेवलपमेंट में स्टार्ट होते हैं। फिर वो SRY जीन आती है तो एक्टिवेट होती है तो टेस्टिस बन जाता है। फिर AMH आता है तो वो उसको जो फीमेल ऑर्गन है उनको इनहिबिट कर देता है, अदरवाइज इट इज ए नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। तो वो खूबसूरत फिक्रा ये कहा करते थे कि नॉर्मल डेवलपमेंट इज ऑफ फीमेल एंड मेल इज अ ब्यूटीफुल एनॉमली इन इट। मेल इज अ ब्यूटीफुल एनॉमली इन इट, ठीक है। तो मेल होना एनॉमलस है, असल डेवलपमेंट फीमेल डेवलपमेंट है, ठीक है। अब ये पता नहीं मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ ये ठीक है। तो ये इसलिए AMH, अब AMH का ये तो फंक्शन है जो फीटल लाइफ में था, वहीं पे हो रहा है ना सब कुछ, लेकिन अब इसकी कमर्शियल वैल्यू निकल आई है, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे। और AMH इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ विच ओवेरियन फंक्शन रिजर्व्स। अब ये पता नहीं क्या उसका कहाँ से ताल्लुक है, क्या है, मुझे नहीं ये डिटेल पता, बट AMH
is now used for the assessment of ovarian function. ये भी हम जब फीमेल करेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, ओवेरियन रिजर्व के लिए, ठीक है। लेकिन इसका सोर्स क्या है मेल में? सर्टेनली सेल्स, ठीक है। तो ये आंसर है उसका। SRY or sex determining region on Y chromosome controls early testis differentiation. SRY gene, which is a testicular factor or transformation factor, acts with other TFs और भी बहुत सारे हैं, और उससे फिर आपकी sexual differentiation होती है. Sertoli cell secrete AMH, it causes female reproductive structures to regress, and लेटिंग सेल का तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। सो a lot of basic sciences today, but I think we do require these revisions. ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी डायग्राम, इसलिए मैंने उठाई। राइट साइड तो आपने पढ़ लिया कि SRY जीन कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, टॉप ऑफ द पी आर्म ऑफ द Y क्रोमोसोम। पी आर्म से क्या मतलब है? शॉर्ट आर्म। पिटीट का मतलब होता है शॉर्ट। कोई कहीं भी प्लस पिटी स्मॉल हो तो उसका पिटी माल, ग्रैंड माल और पिटी माल जैसे एपिलेप्सी होती है। तो अब क्यू जो है ना, वो क्यू से कुछ नहीं बनता, लेकिन वो पी के बाद क्यू फिर आ गया, ठीक है। तो पी आर्म इज में ये SRY रीजन होता है। जो लेफ्ट साइड पे है ये आप देखिएगा, ये बड़ी मजेदार चीजें लिखी हुई हैं इन्होंने कि मेल में जो चीजें आती हैं उसकी कहाँ जीन्स मौजूद हैं। बड़ी मजेदार है ठीक है। तो ये टोटल लैक ऑफ रिकॉल फॉर डेट, सिटिंग ऑन द टॉयलेट, जैसे ये लास्ट वाला देखिए ना, टोटल लैक ऑफ रिकॉल ऑफ डेट फॉर डेट्स, यानी सबसे बड़ा डिजास्टर जो आज सुबह मेरे साथ भी हुआ है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो पर्सनल, लेकिन मेरे साथ सुबह ये डिजास्टर हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टुडे इज बर्थडे ऑफ माय वाइफ एंड आई फॉरगॉट इट। वो आजकल रिवाज सुबह करनी है ना, वो 12 बजे, तो देयर वर मैसेजेस बिफोर माय सो दिस एग्जैक्टली दिस इज द जीन, ठीक है। So ये भी बहुत मजेदार है, inability to express affection on telephone. Inability to express affection over the telephone. Third last one. So इसका मतलब है कि it is a characteristic of male. Male, ये बहुत अच्छा किसी ने बनाया हुआ है सारे। ओके जी, ये मेरा ख्याल हमने सारी डिस्कशन कर चुके हैं। हाँ जी, उसके बाद दिस इज नॉट माय फोटोग्राफ, नॉट दैट ओल्ड। तो ये है एजिंग के साथ द टेस्टोस्टेरोन विद इन एजेस, वेरियस एजेस, ठीक है। अब क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं शुरू में आपको बताया था कि ये हम क्यों डिस्कस करें, बिकॉज ये आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आपने जनरली एज के साथ टेस्टोस्टेरोन की रेफरेंस रेंज नहीं दी होती, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, आपने तो एडल्ट की एक रेफरेंस रेंज दी होगी बस, लेकिन उसमें बहुत सारी वेरिएशन होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने इन्फेंट से शुरू करें आप, तो इन्फेंट में थोड़ी सर्ज आती है, फिर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, फिर प्यूबर्टी पे राइज होता है, और फिर 50 ईयर्स के बाद कम होना शुरू होता है। देयर इज डेफिनेटली अ डिक्लाइन इन टेस्टोस्टेरोन आफ्टर 50 ईयर्स, ठीक है। और इस बाबा जी की एज के साथ तो आप देख लें, ठीक है, मैंने बड़ी चुन के ऐसी पिक्चर लगाई है कि 101 साल का हो बाबा, ठीक है। तो और 80 साल से उम्र वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। 50 साल वाले तो बहुत हैं। तो LH जो है ना वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सारा है, जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो LH इंक्रीज होगा। सो एक आपके पास आते हैं पेशेंट 65 इयर्स ओल्ड और वो कहते हैं जी LH ज्यादा है, तो वो तो ज्यादा होना है भाई, ठीक है, तो इट्स नॉर्मल फिनोमेना। तो आप उसको एपोलोजेटिक होने की, अपने टेस्ट को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। लीडिंग सेल्स की जो स्टीरियोडोजेनिक कैपेसिटी है दैट डिक्रीजेस, स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीजेस वगैरह, ये सब कुछ इस एज में होता है। तो ये मैं समझ लें इट इज अ समरी ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन थ्रूआउट लाइफ। न्यूबॉर्न में आप देखिए थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, ठीक है, चाइल्डहुड में फिर बिल्कुल कम हो जाता है, और फिर एडोलेसेंट में बढ़ता है, और फिर एडल्ट्स में पीक आती है, और फिर वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए कि आप अपने जब इंटरप्रिटेशन करें टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट को तो इसके साथ करें।
एक और छोटा सा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मेल के जब टेस्टोस्टेरोन आता है और फीमेल का टेस्टोस्टेरोन, दे आर टोटली डिफरेंट टेस्ट। वो टेस्ट तो एक ही है, टेस्ट तो आप एक ही तरह करते हैं, वही किट है जो मेल की है जो फीमेल की है, टेस्टोस्टेरोन में कोई फर्क नहीं बायोकेमिकली, लेकिन उनकी जो क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेल टेस्टोस्टेरोन और फीमेल टेस्टोस्टेरोन का क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अब मुझे ये पूछना है आपसे कि अगर मैं कहूँ कि फीमेल में लो टेस्टोस्टेरोन इज इम्पोर्टेंट एंड मेल में हाई टेस्टोस्टेरोन इज इम्पोर्टेंट, इज इट ट्रू? जुबा बहुत जोर से नो कह रही क्यों? ये आपने बहुत दफा मैंने तो आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो बाकी बच्चों को भी मैं बता रहा हूँ कि फीमेल में अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लो आ रहा है तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। फीमेल में हाई टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज हाई टेस्टोस्टेरोन से एक बड़ी कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड है, इट इज कॉल्ड पीसीओएस। इसी तरह मेल के हाई टेस्टोस्टेरोन की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, सवाए वो जो इसके पेशेंट हैं विकास के जो डीएसडी के हैं, उनमें अगर हाई टेस्टोस्टेरोन, अगर आपके पास एक डीएसडी का पेशेंट आफ्टर प्यूबर्टी आया और उसका टेस्टोस्टेरोन हाई आ रहा है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। अदरवाइज जो, लेकिन आपके पास जो मेजॉरिटी आएंगे टेस्टोस्टेरोन, वो आएंगे जिनमें एजोस्पर्मिया आया है ऑन सीमेन। अब आपने उनका जब टेस्टो किया तो वो अगर हाई भी आ गए तो नो प्रॉब्लम इन दैट, वो नॉर्मल है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल है, ठीक है। और अपर रेफरेंस में, अच्छा अब दूसरा सवाल ये है कि टेक्निकली एज ए केमिकल पैथोलॉजिस्ट विच टेस्टोस्टेरोन इज मोर चैलेंजिंग, मेल और फीमेल? ये कोई सोच के बताइए आंसर। जी फीमेल वाई? अब इसका आंसर भी लिखे साथ, वाई फीमेल टेस्टोस्टेरोन इज अ बिग चैलेंज टू एन हार्मोन लैब? क्यों है जी? आप इधर से बताइए, बच्चे जो जूनियर है। एक्सीलेंट, याद रखिएगा जब भी किसी एनालाइट की क्वांटिटी कम हो, कंसंट्रेशन कम हो, उसका करना उतना ही अजाब होता है। तो फीमेल टेस्टोस्टेरोन आपके लिए बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि वो उसके वैल्यूज लो होती हैं। कितनी होती है रेफरेंस रेंज उसकी? 2.7, ठीक है। तो वो अब इतने लो में आपका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए उसको पिक करने के लिए। इसके मुकाबले में मेल टेस्टोस्टेरोन यूजुअली पोजेस नो प्रॉब्लम, नो नॉट एट ऑल। तो अगर आपका खास तौर पे आप एकास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में, विच यू मस्ट डू, तो अगर वैल्यूज लो में वो कभी लो में आती है, कभी हाई में आती है, कभी नॉर्मल होती हैं, जो आपके पास आता है अननोन सीरा, तो उसमें अगर वो लो वाला है तो प्रॉब्लम आती है बहुत। और वो उसका मकसद ये होता है कि आपका फीमेल टेस्टोस्टेरोन ठीक है कि नहीं है, ठीक है। और इसलिए वो हमेशा से हिस्टोरिकली भी चैलेंज रहा है। उसको कहते हैं पहले, बस लोग कहते हैं उसको डायलाइज मेम्ब्रेन से करके फिर करना चाहिए, फिर ठीक आता है। बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं, और इसीलिए वो पीसीओएस में, बहुत सारे पीसीओएस के पेशेंट्स में आपको हाई टेस्टोस्टेरोन नहीं मिलता, ठीक है। एंड यू हैव टू रिजॉर्ट टू दी फ्री एंड्रोजन इंडेक्स, इसको उसकी बाइंडिंग वगैरह को आप करना पड़ता है, जो टेस्टिकल बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स होती है। So this was chemical pathology part of it. बल्कि शायद मुझे इसकी कुछ स्लाइडें ज़्यादा बनानी चाहिए थी, लेकिन यही मैं आपको बता रहा था कि फीमेल टेस्टोस्टेरोन आपके लिए हमेशा चैलेंज होगा, और उसकी वजह ये है कि इट इज लो क्वांटिटी, और इसको आपने हाई से डिफरेंशिएट करना है, इसको लो से नहीं करना है। लो टेस्टोस्टेरोन फीमेल नो सिग्निफिकेंट, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी। हाई की सिग्निफिकेंस है कि वो पीसीओएस है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। इसी तरह मेल में इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस हाई की सिग्निफिकेंस नहीं है, लो की सिग्निफिकेंस है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन हाइपोगोनाडोलिज्म, ठीक है, तो उसमें लो की सिग्निफिकेंस है। तो और मेल में लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसकी कितनी नॉर्मल, हमारी क्या रेफरेंस रेंज है मेल टेस्टोस्टेरोन? 9 to 26 है मेरा ख्याल, 9 to 26, ठीक है। और ये आर्बिट्री है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। 6 तो 9 to 26 तो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लेस देन 27, तो खुद आप इमेजिन कर लेना। तो यू आर डीलिंग विद वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके जी, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, अगर कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस क्लिनिकल है किसी का,
तो कॉमनेस्ट कॉज क्या है मेल इनफर्टिलिटी? हाँ जी डॉक्टर साले आप स्पर्म्स, वेरी गुड, sperm abnormality. So the natural now question comes when a couple comes for the investigation of infertility, और इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन चाहे मेल हो फीमेल हो, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा इधर से? जी विकास। मोर देन 12 months, और इसमें खास तौर पे जो हमारे यूनिफॉर्म वाले लोग हैं उनके लिए एक छोटा सा जोक भी है कि मुझे जोक तो पहले सुना लेने दो। वो जोक ये है कि ये जो वो आज हमारी गायनोकोलॉजिस्ट अक्सर ये सुनाती है कि वो आ जाते हैं जी साल सवा साल हो गया शादी हो गई है बच्चा नहीं हो रहा, सास ले आती है ना उसको अपने बहू को, वो तो बल्कि 3 महीने में ही ले आती है, तो चलो फर्ज करें कि वो 15 महीने में लाती है, तो वो पूछते हैं कि अच्छा वो किधर है, इसका मियाँ किधर है? वो सिपाही है जी, वो वहाँ पे है सियाचिन में पोस्टेड है। तो कहते तो शादी के बाद कितने दफा आया? कहते 2 दफा है। तो वो कहते हैं कि इस तरह फिर कैसे होगी? तो 1 साल आप तो कहते हैं मैं थे ढोल मुल्तान है, तो फिर तो नहीं बच्चा होएगा ना। तो ये कहते हैं कि 1 year ऑफ रेगुलर सेक्सुअल लाइफ ये जरूरी है इसमें। तो आपके कॉन्टेक्स्ट में ये बात इसलिए की है कि आप लोग भी जब आपके पास इनफर्टाइल कपल्स आते हैं तो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि वाकई इनफर्टिलिटी है कि नहीं है, वो इकट्ठे रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है वो ये कि फीमेल से स्टार्ट करते हैं, हमेशा फीमेल से स्टार्ट। इस पे लड़ाई झगड़ा, हाँ घर में लड़ाई हो जाती है, लेकिन यू मस्ट पुट योर फुट इन इट कि जी नहीं हर सूरत में मेल का होना है। सीमेन एनालिसिस वैसे भी एक सस्ता टेस्ट है, मैं आपको बताऊं इसमें ये टेस्ट की कॉस्ट कम है, लेकिन इसमें ज़ाहिर है मैन पावर ज़्यादा चाहिए, और मैन पावर तो हमारे यहाँ ट्रेन मैन पावर कम ही है वैसे, लेकिन इसमें रीजेंट की कोई ऐसी कॉस्ट नहीं। और वो स्टार्ट करते हैं फीमेल के LHFS से, आप अंदाजा करें वो कम से कम 2-2.5 हज़ार का टेस्ट है LHFS प्रोलैक्टिन से। सबसे पहले फीमेल का वो टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम मेल एंड इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम सीमेन एनालिसिस। कई केसेस मेल में भी हार्मोन्स नहीं करने आपको। हाँ कई केसेस ऐसे देखे हैं कि सर वो अपने बच्चे की दूसरी शादी करवाते हैं, तीसरी शादी हाँ और मर्द का नहीं मर्द का नहीं कराते हैं। ऐसे अब ये कम हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये भारत की बहुत बड़ा मसला है, हमारा सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। चलें जी, ये अब केस है कि एक्चुअली सीमेन एनालिसिस जो क्लासिकल है उसमें बायोकेमिकल एनालिसिस नहीं होता, ठीक है, बहुत थोड़ा होता है। ज़्यादातर जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजी काउंट्स और वो चीज़ें होती हैं, लेकिन बीइंग केमिकल पैथोलॉजिस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और हमारे प्रॉब्ली बीड दिलशाद का जो डेजिग्नेशन थी वो इस पे थी, सीमेन या शायद समी की PhD थी इस पे, एक हमारे केमिकल पैथोलॉजी PhD भी की थी इस पे। So there are a lot of biochemical tests which can be done on semen. So इस क्वेश्चन का मकसद ये था कि आपको उन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। एसिड फॉस्फेटेज करते हैं, फ्रुक्टोज करते हैं, जिंक करते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज करते हैं, ये और भी होंगे लेकिन ये टेस्ट जो है ना वो कॉमनली अवेलेबल है, कॉमनली तो नहीं लेकिन अवेलेबल है हमारे में, ठीक है। तो इस पेशेंट में अब आपने बताना है कि क्या है। शबनम ख्वाजा ने सी लिखा है, एब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। जी और कोई? डॉक्टर शबनम आप ही लिखें कि व्हाई यू से इट इज सी। आंसर तो आपका ठीक है, एब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। फ्रुक्टोज काम है, वेरी गुड। द सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज इन सीमेन इज सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स आपको पता है ना, 2 ऑर्गन्स होते हैं जो रिलेटेड है विद द मेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो उसका मेन फंक्शन है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज अगर किसी में कम हो तो मोस्ट प्रोबेबली या तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है सेमिनल डक्ट की या फिर एब्सेंस है, ठीक है। ये जो लो आ रहा है, इतना कम आ रहा है, इस पे भी आप ये कह सकते हैं कि ये क्यों फिर आ कहाँ से रहा है। ये हमारे टेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा लोगों को नॉर्मल से अनडिटेक्टेबल से। ओके
A male of 21 years has not developed secondary sexual characters and other signs of puberty. His hormonal profile is as following. Serum testosterone उसका low है, LH 5 है, FSH 3 है. What is the most probable diagnosis? जी बावलपुर से डी आया, संबल से भी डी आया, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ठीक हो. सादिया दाऊद, डॉक्टर सादिया, जी क्या आपका क्या डी कैसे कह रहे हैं आप डी? वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज बेसिकली हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, जिसको सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म भी कहते हैं. तो ये आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं जिनमें एफएसएच एलएच लो होता है और टेस्टोस्टेरोन लो होता है. ठीक है, तो हम अब आप जब रिपोर्टें निकाल रहे हैं, एंडोक्राइन में शुरू किया रिपोर्टें निकालने आप नहीं? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है. ये इसका नॉर्मल होना ही एबनॉर्मल है ना, ये इनअप्रोप्रिएटली नॉर्मल है ना ये, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अगर लो है तो एलएच एफएसएच को हाई होना चाहिए था ना, अगर वो नॉर्मल होते तो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन का पॉइंट, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि बज़ाहिर जो चीज़ नॉर्मल होती है इट मे बी इनअप्रोप्रिएटली नॉर्मल, तो वरना उसका नॉर्मल बिहेवियर तो ये था कि उसको इंक्रीज होना चाहिए था ना. तो सिंस इट इज नॉट इंक्रीज, इट इज एबनॉर्मल. अच्छा, retrograde ejaculation is a fairly common cause of male infertility. The lab test which can indicate presence of this abnormality is ये retrograde ejaculation का मतलब ये होता है. और कौन से पेशेंट होते हैं जिनमें ये होती है सबसे ज्यादा? Can you tell the group of the patients, male patients, जिनमें retrograde ejaculation होती है? नहीं. इनमें भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली किस में होती है? सबसे जो कॉमन सिचुएशन है प्रोस्टेक्टमी में. आफ्टर प्रोस्टेक्टमी, जो मेल की प्रोस्टेक्टमी होती है, क्योंकि प्रोस्टेट तो यूरेथ्रा को कवर करता है ना सारा, अगर प्रोस्टेट नहीं होता तो वो यूरिन में चले जाते हैं स्पर्म सारे. ठीक है, तो उसका खास साइन ये है, स्पर्म इन द यूरिन. इट इज कॉल्ड रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन. तो अब ये लेकिन और कंडीशन में भी हो सकती है. अब आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये कोई ऐसा सिनेस्टर चीज नहीं है. ठीक है, कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है. आपके अक्सर आप जो लैब है, आप जिसको हम क्लिनिकल पैथोलॉजी कहते हैं, यूरिन जहाँ पे माइक्रोस्कोपी हो रही होती है, वो आपके अंडर में होगी. यू विल बी इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स एंड तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल. तो वहाँ पे वो टेक्नीशियन आ जाएगा जी, इसके यूरिन में स्पर्म्स आ रहे हैं बहुत सारे. इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फाइंडिंग. ठीक है, अगर वो ओल्ड एज का है तो मे बी उसकी प्रोस्टेटेक्टमी हुई हो, टीआर हुआ हो, और अगर यंग एज में फिर भी हो सकता है इसमें. ठीक है, तो स्पर्म्स इन द यूरिन इज नॉट ए. उसके बाद ये लास्ट मेरी स्लाइड है. आज थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट था, ये मैंने इंटेंशनली आज कुछ ज्यादा नहीं इसमें चीजें डाली. तो ये है सीमेन एनालिसिस का WHO रेफरेंस लिमिट्स. ठीक है, ये अब मैं नहीं इसको डिस्कस कर रहा, लेकिन यू मस्ट नो दिस. ठीक है, ये बहुत ओवरलैप है. ये जो सीमेन एनालिसिस है, ये मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ सेक्शंस में होता है. कहीं पे केमिकल में हो रहा होगा, कहीं में हेमाटोलॉजी में हो रहा होगा. हमारे यहाँ ये हेमाटोलॉजी में होता है सीमेन एनालिसिस, लेकिन ये सबकी डोमेन है, कॉमन डोमेन है. ठीक है, और आपको एग्जाम में कहीं भी ये आ सकता है. मैं आपको ये ना आप समझे कि हेमाटोलॉजी का टेस्ट है. इट इज वेरी मच योर टेस्ट. इसमें आपको नॉर्मल काउंट पता होना चाहिए, नॉर्मल वॉल्यूम कितना है, स्पर्म कंसंट्रेशन कितनी है. ठीक है, मोटिलिटी कैसी होती है. और क्योंकि आप ये रिपोर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी, आप अपने बॉस को नहीं कह सकते मैं ये मेरी डोमेन नहीं है. यू हैव टू डू इट. जितने साल मेरे और कर्नवीर, कर्नल तारेक और कर्नल जायजा, ये सारे गवाह बैठे हैं कि सारी जिंदगी हमने ये रिपोर्टें डिश आउट की हैं और इसकी प्रॉब्लम्स को फेस किया है सीमन एनालिसिस की. ठीक है, तो ये मैं अभी नहीं कर रहा आज, लेकिन ये आपको जरूर पढ़ना है सारा. इसकी व्हाट आर द इंडिकेशंस, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू टेक दिस टेस्ट, how to collect sample, what is the methodology involved when doing semen analysis, what is the reference values. तो WHO की डॉक्यूमेंट है, मैं भेज दूंगा आपको. अगर पुराने स्टूडेंट्स के पास तो है
तो बाकियों के लिए मैं भेज दूंगा। तो इसमें आप खुद इसको देख लीजिए, कोई इतनी खास इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है वैसे। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? सर ये जो ह्यूमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स होती हैं तो इसके ऊपर कमेंट्स तो कोई नहीं होते, मैंने मतलब वीडियो में जब देखे तो जस्ट ये बेटा देखो, जो प्रैक्टिस हो रही है वो जरूरी नहीं होता कि वो आइडियल हो। कमेंट्स तो मस्ट है ना। अगर आप 2 लफ्ज लिख देंगे कि नॉर्मल है या कुछ है तो बहुत अच्छी बात है। मोडाली वाले नहीं लिख रहे कमेंट्स आजकल। सर पेशेंट करके ना इस तरह होता है कि मतलब मैंने जो नीचे हमारी वो क्वेश्चन के वो आते पेशेंट को थोड़ा हेजिटेट भी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि रिपोर्ट ठीक है कि नहीं। हाँ तो बिल्कुल उसके बिल्कुल, सर जिस तरह एक पेशेंट का तो उसकी लेकिन वो खैर वो अंग्रेजी में लिखा हो तो फिर भी उनको नहीं समझ आता। अगर अब नॉर्मल हो तो लिखते हैं वैसे एजोस्पर्मिया हो लगे। वैसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो टेस्ट है ना, जो कॉमन टेस्ट हैं जिसमें सीमन एनालिसिस, सीएसएफ, पेरिटोनियल फ्लूइड जिसको कहते हैं हम, ये दे आर बैडली हैंडल्ड इन आवर इंस्टीट्यूट। बाकी लोग भी सुन रहे हैं, आई एम सॉरी, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं सही तरह हैंडल हो रहे, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना, वो कोई भी ओन नहीं करता इनको। ये अभी इसके जो मैं उस दिन देख रहा था, वो जो हमने फ्लूइड किया था एलडीयू वाली पेशेंट का, अभी तक रिवाल्टा टेस्ट हो रहा है। ये मुझे नहीं समझ आती क्यों हो रहा है रिवाल्टा टेस्ट। ठीक है, वो ग्लोबुलिन्स के लिए होता था पुराने जमाने में। ठीक है, तो दैट नीड्स टू बी वर्कड आउट। ये हम कभी इकट्ठी मीटिंग करके हम करेंगे। पर ये तो एफआईपी की प्रॉब्लम थी, अब ऐसा ही होगा। जी कोई सवाल किसी का? जी अस्सलाम सर। जी सर डॉक्टर सलमान फ्रॉम काजिया मेडिकल कॉलेज सर। अच्छा गुड जी, सलमान भाई बताइए बेटा। सर क्या सिंथेटिक फॉर्म अवेलेबल है एएमएच की? सिंथेटिक फॉर्म अवेलेबल है एएमएच की, और उसका कोई बेनिफिट है इंट्रायूटेराइन लाइफ में अगर हम उसको यूज करें तो? आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता सिंथेटिक फॉर्म। और उसकी क्या इंडिकेशन होगी? सर हम ये अगर चाहेंगे उसके सेक्स है वो चेंज कर लें इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर। तो आप अच्छे बोलेंगे। ये तो तुम बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जरा एथिकल रिव्यू अच्छा करवा दो। एथिकल रिव्यू वाले को ना अच्छा, और कुछ? ठीक है सर, थैंक यू सर, बंडल दोस्त है। आप पूछे और कुछ? सॉरी, ये मैं आई एम टू नेव टू आंसर योर क्वेश्चन। मुझे इसका नहीं पता कि एमएच का क्या यूज है। जी और कोई सवाल? जी हाँ अच्छा, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस वी से गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। कल आपको से 3 होगा, ठीक है, सीरीज का लास्ट जो है लेक्चर प्रॉब्ली, अगर 4 की जरूरत ना पड़ी हमें तो अच्छा, लेकिन उसके बाद बेटा थोड़ा सा गैप होगा। अब ये उसके बाद लेक्चर्स भी नहीं होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारी यहाँ बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 28, 29, 30, तो उसके दौरान लेक्चर हमारे पॉसिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो 1st वीक ऑफ मई है, हम बिजी तो बहुत होंगे, वी कैन सी कुछ हम कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, वो हम बाद में फिर आपको बता देंगे। और कोर्स की नई डेट्स आपको पता चल गई हैं, मैंने अपनी तरफ से तो कम्युनिकेट किया था, 13-14 मई को कोर्स है। और ये कोर्स जो है ना, ये इसकी पोस्टपोनमेंट की वजह भी मैंने लिख दी थी कि क्लैश थोड़ा सा हेमेटोलॉजी के साथ आ रहा था हमारा, और हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट जो है ना वो हम उनको मिस करें। तो हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ पोस्टपोनमेंट में, तो बल्कि अच्छा हुआ। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों अच्छा हुआ। एग्जाम के करीब हो गया, ठीक है। उस जो सेकंड अनाउंसमेंट है, जिसका मैंने अपनी ईमेल में भी आपको जिक्र किया था, कि इमीडिएटली आफ्टर दिस कोर्स फ्रॉम मंडे, कौन सी डेट बनती है? 16 मई बनती है ना जी, 13, 14, 15, 16, 17 मई जो मंडे है ना, उससे हम यहाँ पे इंटेंसिव कोर्स कर रहे हैं केमिकल पैथोलॉजी का, फॉर दोज हु आर आइदर अपीयरिंग इन द एग्जाम, और
और who are likely to appear in the exam, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह 5 दिन का होगा वो, सिर्फ 5 या 6 दिन का। 5-6 दिन में आपको एक्सटेंसिवली इंटेंसिवली पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हमारा इरादा है, हमारे सारे कंसल्टेंट्स पढ़ाएंगे। हम बाकियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जूम पे पढ़ाएं या इधर आ जाएं, ठीक है। जो आ सकेंगे उनको बुला लेंगे, बाकी उनके लिए हम जूम पे करेंगे। तो जूनियर भी सारा आ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हमारी सीनियर्स के लिए है। जो कुछ लोगों ने कहा है जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होना चाह रहे हैं वो भी आना चाह रहे हैं, वेलकम, आ जाएं, कोई मसला नहीं। हम अकोमोडेशन, हमारी जो टीम है माशाल्लाह करन तारिक रफ़ी, उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है अकोमोडेशन के लिए आपकी, तो प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। जहाँ तक प्रैक्टिकल की डेट्स का ताल्लुक है, वो तो अभी ज़ाहिर है आपके रिजल्ट के साथ ही आएंगी, लेकिन वो इस कोर्स के बाद ही होंगी, यानी 23rd के बाद होंगी, ठीक है। अभी उसका वेन्यू और एग्जैक्ट डेट्स आपको रिजल्ट के साथ मिलेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। और अगर आपको यहाँ अपना कोई अरेंजमेंट है, अकोमोडेशन है, ये डॉक्टर आयजा की कल ईमेल थी, माशाल्लाह उनका तो मेका है इधर, तो ऐसे लोगों के लिए तो ब्लेसिंग होगी मेरे ख्याल ये कोर्स, ठीक है। तो बाकी जो हैं वो जिनको अकोमोडेशन चाहिए, जनरली हम शेयर्ड अकोमोडेशन देंगे, लेकिन अगर किसी को अपनी सेपरेट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पेमेंट करनी होगी सारे, जो भी गेस्ट रूम चार्जेस हैं, बड़े ज़्यादा नहीं होते हमारे, कम होते हैं। जो मील उसके होती हैं, क्या कहते हैं उसको, मेसिंग चार्जेस हैं, वो सारे आपको देने होंगे, ठीक है। तो लेकिन हम आपकी पूरी फैसिलिटेट करेंगे। जो है वहाँ से कम्यूट करने का प्रॉब्लम, वो भी एक अच्छा इशू है, वो हम कोशिश करेंगे सॉल्व करें, क्योंकि टैक्सीज अब अलाउड नहीं है यहाँ पे, अंदर नहीं आ रही हैं, तो उसको भी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।